together, and this reminds me of something in October 2024. October 2024, we had a meeting. This meeting was arranged by, let me, show the name, Linda Sarsour. Linda actually was the first one who convinced Zohran to run for the mayor. Zohran was not running. Because look, Zohran, a simple assembly member from Queens, running for the mayor. So Linda, and this was a closed door meeting, and Linda, for the first time said that, Zohran wants to run for the mayor. And everybody said, like, it's okay. I mean, he can run, but he cannot win. Zohran will run, but he cannot win. And this was going on like for a couple of months until we came to March. Even in March, most of the Muslims, most of the South Asians, most of the immigrants, they say, look, you know what, this city, especially when Andrew Cuomo, he jumped into the election, believe me, all people, especially even from the Muslim community, all our leaders, they were saying, Cuomo is going to win. Don't waste your time with Zohran. Don't waste your time with Zohran. So there were so many ups and downs in this campaign, but a new history has been made, which is not even being accepted right now by so many minds right now. But alhamdulillah, the purpose of this meeting is to renew and refresh, our commitment to the campaign. Alhamdulillah, in Pakistan, Konya, and the Muslim community, historically we have not been much believers in elections. Why? Because it doesn't really make any difference. If Eric Adam comes or Andrew Cuomo comes, what is the difference does it make? Because there were no Muslim candidates running for any elections. But this is the first time that now, so many Muslims, so many South Asians, 30% actually people, they came to register their vote for the first time. So many even come for the first time to cast their vote, And this will be, inshallah, a historic election that where immigrants, South Asians, Muslims will come for the first time and vote, and they will actually create probably, a catastrophic history. Why? Because even in the last primaries, 59% voters, extra 59% voters came out to vote. And the difference was who? Andrew Cuomo, Eric Adam, even de Blasio, they were not really the change makers. But Zohran is the change maker. And alhamdulillah, we are here, that we are part of this campaign, that we are his supporters. So the purpose of this meeting that we want to hear from every one of them, that how can we now participate, how can we come out and play our role as an individual, as a community leader, because each one of us is a community leader. Each one of us, we have a circle of influence. If it's your family, if it's your close circle, your neighbors, or a community leader, each one of us has a role to play. So inshallah, we will continue with the meeting. And now, inshallah, I'm going to invite Talha. Talha from Drum Beats, inshallah. Fahad is actually the president of Drum Beats. We have Fahad now, the executive director and founder of Drum, which is a strong organization of Drum Beats, or C4. So, Fahad, you can speak now. It's just a symbolic mic and all excited to see it. Assalamu alaikum. I will speak first in Urdu but summarize in English. Not a problem. मेरा नाम फहद है और मैं ड्रम और ड्रम बीट्स का डायरेक्टर हूँ। हमारी तंजीम 25 साल पुरानी है और हमारी शुरुआत काफ़ी हद तक इस इलाके से 9/11 के बाद मिडवुड में सबसे ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया गया और उस वक्त तो पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर सब मुसलमानों को या जो लोग सिर्फ मुसलमान लगते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था। एक
भी सियासतदान नहीं था हमारे लिए बोलने के लिए, एक भी नहीं। तकरीबन 1.5 साल के बाद जॉन लू, जो क्वींस के अंदर एक सेनेटर हैं, उन्होंने आके बोलना शुरू किया। लेकिन वाकई तौर पर अगर आप देखें तो तकरीबन 10-15 साल लगते हैं कि बाकी लोग खुल के बाहर आते हैं। कि जो सर्वेलेंस हो रही है, जो पुलिस का तशद्दुद हो रहा है मुसलमान कम्युनिटी पे, पाकिस्तान कम्युनिटी पे, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं था कि उन लोगों को पता नहीं था कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उनके अंदर हौसला नहीं था, जुर्रत नहीं थी कि मुश्किल बात को बोल सकें। हम अभी भी देखते हैं अब जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गज़ा में हो रहा है, ऐसे मौज़ूओं पे कौन बोलने के लिए तैयार है और ज़्यादातर बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनके ज़्यादातर उल्टी तरफ गलत बात के लिए खड़े होने के लिए तैयार है। तो हम जब देखते हैं कि हम अगर सियासतदान को चुनेंगे तो हमें सोचना चाहिए किस बुनियाद पे चुनेंगे। हमारे लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई ओ देसी है, मुसलमान है, चुन लेंगे। आपके मुल्क के हुक्मरान देसी हैं? आपके मुल्क के हुक्मरान मुसलमान हैं? पीछे कुछ किया उन्होंने? सिर्फ मुसलमान होना, सिर्फ देसी होना काफी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी इससे मुझे फायदा क्या होगा। हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें जॉब मिलेंगे, मीडिया वाले हमारे अखबार के लिए हमें ऐड मिलेंगे, क्या मुझे उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें मिलेंगी, क्या वो आके हमारे इवेंट के अंदर 3 लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम, एक शेरवानी पहनी होगी, एक समोसा खाएंगे और जाएंगे। अब जो फैमिली पुलिस का निशाना बनी है उसको इसके समोसा खाने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने ये देखना है कि कौन मुश्किल वक्त में खड़ा होगा हमारे साथ, कौन वो बात बोलेगा जो बोलनी मुश्किल है। उस नजरिए से ज़ोहरान ने अपनी काबिलियत पहले भी दिखाई है। हमारी तंजीम के साथ मुकम्मल गुफ्तगू में थे कि सर्वेलेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब टैक्सी वर्कर्स 5, 6, 7, 8 ड्राइवर ने खुदकुशी की, उसने टैक्सी वर्कर अलायंस के साथ मिलकर भूख हड़ताल की। 19 दिन भूख हड़ताल आम इंसान नहीं कर सकता, सियासतदान को आप छोड़े। और अब भी जब वो कैंपेन चला रहा है आम लोगों की बात करना, लोग न्यूयॉर्क के अंदर घर अफोर्ड नहीं कर सकते, ग्रोसरी लेना मुश्किल हो गई है, चाइल्ड केयर जितना आप किराया लेते हैं उतना ही आपको चाइल्ड केयर के लिए देना पड़ता है। और मेरी बात है, न्यूयॉर्क का मेयर गज़ा या फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच के लिए बोल सकता है। इन 2 बातों के लिए कि आम लोगों के लिए बोलना, फ़लस्तीनियों के लिए बोलना, ने उसको निशाना बना दिया गलत सोच वाले लोगों के लिए। लेकिन वो हमारे लिए हमें अपनाना चाहिए। ऐसे ही लोग हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। अगर लीडर होंगे ऐसे लीडर होने चाहिए। तो अब हमारी ज़रूरत है कि हम लोगों को इकट्ठा करें। लोग या तो फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, हम लोग हर हफ्ते फ़ोन लिस्ट जनरेट करते हैं जहाँ पे ड्रम बीट्स के लीडर्स हैं। अगर आप हाथ खड़ा करें, इन्होंने सैकड़ों कॉल्स की हैं, सैकड़ों नहीं 100 कॉलिंग की हैं, नहीं बल्कि बेटू ने हज़ारों कॉलिंग की हैं। बहुत सारे दरवाजे खटखटाए हैं और आम गुफ्तगू में ग्रोसरी स्टोर में हो जी आप वोट करने जा रहे हैं, आपने वोट रजिस्टर किया नहीं, अच्छा चले आप आए, हम 6 बजे हमारे ऑफिस में आप आ जाए। एक एक करके लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, जादू से लोग नहीं आते।
हमारी जिम्मेदारी है कि हम और लोगों को लेके आए और जो लोग यहाँ पे आ गए हैं वो वायदा कर रहे हैं कि हम मिलके दौरान के लिए काम करेंगे और इस किस्म की सियासत जो आम लोगों के लिए हो, जो इंसाफ के लिए हो, उसके लिए काम करेंगे। और अगर आप में से कोई केंजिंगटन से आया है तो सारा भी यहाँ पे बैठी हैं, जिस केंजिंगटन के अंदर कैंपेन के लिए कैनवस को लीड करती हैं। तो अगर आपने केंजिंगटन में दरवाजे खटखटाने हैं, आप इनके साथ भी मुलाकात कर सकती हैं और इनसे भी बात कर सकती हैं। I will offer that was longer than I expected, but a brief summary. Drum and Drum Beats, we are a 25-year-old organization. In many ways, a lot of our starting work was here in the aftermath of 9/11, where a lot of people were targeted in this neighborhood, the most across all the city, along with Bay Ridge. And at that time, when hundreds of people were picked up from this neighborhood, there was not a single elected official that was willing to stand up for our community. And it wasn't that they didn't know better, they were too afraid. And so that raises the question of what kind of politicians we're looking for. And we're looking for people that are willing to stand up, that are willing to be brave, that are willing to take risks. Not just because they're Muslim or South Asian or they look like us. Because we have leaders in our home countries who look like us and they haven't done anything for us. Not because they're gonna, come to our events and say 2 words in our language, eat a samosa, and then go. For a family that's been targeted and abused by the police, that's being targeted by immigration, eating that samosa is not gonna do anything for them. And not because we're gonna get some jobs out of it, or that we will be stand next to them for a photo. We need people that are willing to fight the issues of everyday people. People who struggle to pay rent, to buy groceries, to have child care, to have good transit. This is what Zoran stands for. And on an issue like Palestine, which is very important for many people in our community, he's been willing to take a stand. Very clear. And when particular communities, like Jewish communities, have raised concerns, feeling unheard, he's taken the time to listen to them. And he's listened to them, but still also held firm to his principles. That is a balance that we need. That is a balance that we should strive for in all elected officials. And so to get this sort of politics to transform our city and our country, we need everybody to join together, to make phone calls, to knock doors, to pull in your neighbors, pull in your relatives, make sure they're registered, and make sure they go out and vote. And so if you are in this neighborhood, you want to sign up with Drum Beats, Talha is there and holds is sort of like our volunteer coordinator. If you came here from Kensington, Sarah here is also the field lead for Kensington, and you can also talk to her. Thank you again. Assalamu alaikum. Now, inshallah, we can without the mic. Now we will invite Talha, inshallah, to have some few words. Talha Khan from Drum Beats. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं जो चीज़ों पर बात करना चाहूँगा, एक तो पिछले कैंपेन की मैं आपके साथ थोड़ी तफसील शेयर कर दूँ कि हमारी कम्युनिटी ने क्या फैसला लिया उसमें और ज़ोरान को किस तरह कामयाब कराया। हमारी कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो पिछली सिर्फ ज़ोरान की कैंपेन, ज़ोरान के इलेक्शन में हमारा वोटर टर्नआउट 5% से बढ़ के 15% पे चला गया। 3 गुना होगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आप अपनी नेता के बजाय उसमें हमारी कम्युनिटी के लोगों का, ये जो हमारी मेंबर्स बैठी है सारी ख़वातीन मर्द, जो हमारे बैठे इनका बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ में। इसके बाद जनरल इलेक्शन में भी हम आपसे यही तवक्को रखते हैं कि आप सब वॉलंटियर करें, आप आके हमारे साथ फ़ोन पे करें, डोर नॉकिंग करें। अगर जुम्मे के दिन आप अवेलेबल है तो हम हर फ्राइडे को मसाजिद के सामने जाके नए वोटर रजिस्टर करते हैं। आपको बताएं नए वोटर रजिस्टर करने का कितना बड़ा फ़ायदा है। इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन में जिन लोगों ने वोट दिया था, अगर वही सेम लोगों ने इस इलेक्शन में वोट दिया होता तो ज़ोरान 10 पॉइंट से हार जाता।
ये नए वोटर्स की बदौलत था कि ज़ोरान ये इलेक्शन इतने बड़े लीड के साथ जीत गया। तो हमें बहुत ज़रूरत है वॉलंटियर्स की कि हमारे साथ आए, वॉलंटियर करें, मसाजिद पे जाके हमारे साथ नए वोटर्स रजिस्टर करें, अपने नेबर्स को रजिस्टर कराएं, जिसको भी आप चाहते हैं जहाँ भी जाए। हमारी जो कम्युनिटी की मैं थोड़ी सी बात करती, जो ख़वातीन और मर्द हमारे बैठे हैं ट्रम्प बीट्स की तरफ से, इन्होंने फादी थोड़ा शेयर किया, लेकिन मोर देन 3000 कॉल्स की है सिर्फ ज़ोरान ममदानी के कैंपेन के लिए। 1.5 साल दरवाजे कटखट आए हैं केंसिंगटन में, मिडवुड में, सब जगहों में। दूसरी बात जो इस इलेक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम ज़ोरान ममदानी को कामयाब कराएं। आप सब ने देखा होगा न्यूज़ में कि डीसी में ट्रूप्स को, आर्मी वालों को डिप्लॉय किया गया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। फिर लॉस एंजलिस में भी वही चल रहा है कि आइस खुलेआम घूम रही है, लोगों को अरेस्ट कर रही है। उस चीज़ का हल क्या हो सकता है? क्या उसमें एंड्रू कोमो जैसा मेयर हमें बचा सकता है आपके ख्याल में, या एरिक एडम जैसा मेयर हमें बचा सकता है? उसमें हमें ऐसा मेयर चाहिए, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा लीडर चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट कर सके, हमारे अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। इस तरह लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास थी, उन्होंने रेजिस्टेंस शो किया। बॉस्टन की मेयर जो थी मिशेल वू, उन्होंने रेजिस्टेंस शो किया, काफ़ी हद तक आवाम के साथ खड़े रहे वो लोग। हमें भी उसी तरह के मेयर की ज़रूरत है, और इसी यही वजह है जिसकी वजह से हमें सबको वॉलंटियर करना चाहिए, डोर नॉकिंग में, फ़ोन बैंकिंग में, वोटर रजिस्ट्रेशन में, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर, अपने मेयर ज़ोरान ममदानी को कामयाब करा सकें। जो भी बंदा आपके साथ ख्वाहिशमंद हो वॉलंटियर करने के लिए, वो फ़ोन बैंकिंग वो घर से भी कर सकते हैं, ऑफिस जाके कर सकते हैं, डोर नॉकिंग हो मुख्तलिफ दिनों में हम कर सकते हैं। आप आके मेरे साथ मिलें, मैं आपका नाम ले लूँगा और हम मिल के इंशाल्लाह एक बड़ा पाकिस्तानी कैंपेन लॉन्च करेंगे। तमाम पाकिस्तानी जो हमारा नेबरहुड है, इसमें हम सिर्फ पाकिस्तानी दरवाजे जाके खटखटाएंगे जो हमारे जवान होते हैं, जो लोग पाकिस्तानी हैं। तो उसके लिए एक बड़ा लॉन्च हम करने वाले हैं अगले हफ्ते। आप सबसे खास है कि आप आके अपने अब मैं हसान को बुलाऊंगा, हसान चौधरी को, जो ज़ोरान कैंपेन का हिस्सा है, और वो आपसे 2-3 बातें करना चाहेंगे। The mic is only for the camera, so you have to be loud. मैं उर्दू में बात करूँगा मेरे शुरू में, मेरा नाम हसान चौधरी है और मैं डायरेक्टर ऑफ मुस्लिम एंगेजमेंट हूँ ज़ोरान की कैंपेन के लिए। एक स्टोरी से आई थिंक मैं आई विल स्टार्ट कि from जब से कैंपेन स्टार्ट हुई अक्टूबर 2024, उसको 1 साल ऑलमोस्ट हुआ है। मैं कैंपेन में हूँ 7 महीने से, मेरी लाइफ के सबसे लॉन्गेस्ट 7 महीने। ज़ोरान I'm not saying कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, जो उसकी कैंपेन का हिस्सा हूँ। आई थिंक एक चीज़ जो मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ ज़ोरान के बारे में, स्टैंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई थिंक उसको ये उसने रिकग्नाइज किया था कि हमें कितनी ज़रूरत है मुस्लिम आउटरीच फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये नहीं कि इलेक्शन जीतने के 2 दिन बाद या फिर 2 हफ्ते पहले, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब दुनिया उसको नहीं जानती थी, उसको पता था कि जो मुस्लिम आउटरीच है और साउथ एशियन आउटरीच है वो कैंपेन का कोर पार्ट है कि हमें अपनी कम्युनिटी को प्रोसेस में लाना है। And so that was एक फील्ड प्रोग्राम का, हमारी कैंपेन एफर्ट का एक बहुत कोर पार्ट। और फास्ट फॉरवर्ड इंशाल्लाह जब जून में इलेक्शन जीते थे, मेरी जो एक बहुत सेटिस्फाइंग एक जो मुझे बहुत खुशी हुई थी वो ये थी कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो पेपर्स हैं, उन्होंने कवरेज की कि साउथ एशियंस जो हैं वो कितने
ज़्यादा तादाद में दिखते हैं जून के इलेक्शन के, राइट? और ये क्या बताता है, क्यों कवर किया राइट? कोई ज़रूरत है तभी कवर किया, वरना तो नहीं कर सकती। ये बताता है कि हमारी कम्युनिटी जो है साउथ एशियन इसकी वो एक पॉलिटिकल फोर्स बनती है। अब ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये एक वोटिंग ब्लॉक बन रहा है, दैट कैंपेन्स के नॉट डिस्मिस, वो डिस्मिस नहीं कर सकते। और ज़ोरान जब भी जाता है, आई मीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो भी यही बात करता है कि जो हमारी जो कम्युनिटी है उसकी कोई रेडिकल कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कोई हम बहुत 100 चीज़ें नहीं मांगते, 2-3 चीज़ें मांगते हैं जो हर कम्युनिटी डिजर्व करती है, उसके पास है। एक रिस्पेक्ट दे दो हमें और एक हमें डिग्निटी के साथ ट्रीट करो, ठीक है? बस 2-3 चीज़ें, कुछ ज़्यादा नहीं है। Not this one. और वो ही मैसेज था जो मुझे लगता है वो बहुत साउथ एशियन को उनको है ना लाइक एक चीज़ उन्होंने अप्रिशिएट की है कैंपेन के बाद। तो मैं यही कहता हूँ कि आगे भी जाके अभी इलेक्शन 5 हफ्ते में आने लगे हैं, लाइक ट्रम्प जो जैसी और है ना उनको आप सपोर्ट करें, क्योंकि इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे। इलेक्शन 5 महीने में आएगा, चला जाएगा, इंशाल्लाह ज़ोरान मेन भी बन जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो ग्रास रूट का, आई थिंक वो होना बहुत जरूरी है कि आप किसी एक बंदे के लिए आपकी वो नहीं होनी चाहिए कोई एफिलिएशन या एप्रिशिएशन जो है ऑब्सेशन आपका होना चाहिए कि लाइक वर्किंग क्लास के लिए एक बंदा होना चाहिए। कोई जैसे बात की नाम नहीं लूँगा, कम्युनिटी में आते हैं, शलवार कमीज पहन के हमने सलाम कर लिया, वो आपको रेंट तो नहीं कम करेगा, तो जिसके लिए आपको नींद नहीं आ रही, वो आपका जो चाइल्ड केयर एक्सपेंस है, जो ग्रोसरी एक्सपेंस है, जो पब्लिक सेफ्टी के एक्टिविटीज हैं, वो तो कम नहीं करेगा। तो आई थिंक एक ये अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दैट्स मेजॉरिटी हमें आ रही है ऐसा और कम्युनिटीज़ को टाइम लगता है, ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती, टाइम लगता है। तो आगे जाके आई थिंक हम जस्ट सेइंग कि 5 हफ्ते रहते हैं इलेक्शन को, नवंबर 4 को इलेक्शन है, जिसमें आप डेमोक्रेट है रिपब्लिकन है, आपको सिर्फ रजिस्टर्ड होना है, आपका वोट सिर्फ रजिस्टर्ड होना है टू बी एबल टू वोट। और एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, द मोस्ट इफेक्टिव जो चीज़ है वो है डायरेक्ट वोटर कॉन्टैक्ट। भूल जाए टीडीएस को, भूल जाए वो जुम्मे में आते बोलता है, जो एक डायरेक्ट वोटर कॉन्टैक्ट है ना, उसका कोई वोट रिप्लेसमेंट नहीं है। तो प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर टाइम पर डोना मिस करें, डोना का अगर आई थिंक कोई बहुत ही हार्ड वर्क है तो आई थिंक फ़ोन पे जो घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि एक अगर आप कोई अपनी कोई आंटी अंकल से बात करते हैं ना फ़ोन में, सलाम कहते हैं, अपनी ज़बान में बात करते हैं, तो आई थिंक उसका जो इफेक्ट है ना वो तो यही आई थिंक हमारी अप्रोच थी सुराग के शुरू में कि हमने सिर्फ एक कैंपेन की लैंग्वेज में कहते हैं ट्रिपल प्राइम वोटर। ट्रिपल प्राइम वोटर एक वो वोटर जो पिछले 3 इलेक्शन में वोट करा जा रहा है, 99% जो कैंपेन है वो उस वोटर के पीछे भाग उसका वोट है। तो जो हमारी कैंपेन की जो सक्सेस है वो यही है कि हमने न्यू वोटर्स को, नए वोटर्स को अपनाने हैं प्रोसेस में। क्योंकि अगर आपको रिस्पेक्ट देंगे तो मोस्ट लाइकली आप वोट करेंगे। बड़ी सिंपल सी साइंस है राइट, कि आप अगर कम्युनिटीज़ को, इंडिविजुअल्स को आप रिस्पेक्ट देंगे, कैंपेन आउटरीच करेंगे, मैं आपके यहाँ पे आके बोलूँगा तो मोस्ट लाइकली कि आप वोट करेंगे। तो डायरेक्ट जो वोटर कॉन्टैक्ट आते हैं उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। तो आई थिंक मेरी जो कैंपेन से रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ कैंपेन वो यही है कि प्लीज़ फोन बैंक वोट नॉकिंग, अपने नेबरहुड में नेबर से बात करना, आई थिंक दैट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस।
पीवीएम तो होती रहती हैं, लेकिन ये जो एक कम्युनिटी बॉन्डिंग है ना और जो कम्युनिटी रिलेशनशिप है, यही इलेक्शन मोदी इलेक्शन I would just tell the crowd that I think from the very beginning that's wrong. That there was an early recognition of the necessity for comprehensive Muslim outreach in order to win the primary election. That was not an afterthought. That was not something that the campaign told volunteers, you know, whenever you get time, speak to Muslim voters. There was, I think, the idea of giving them respect was at the core of our outreach effort. And fast forward, I think one of the most satisfying and inspiring things to have come out of the primary plan was that I think all the mainstream papers recognizing that the South Asian community is a political force to reckon with, and that is supporting what economic business. And then if you reach out to every auntie and every uncle, all the in all the 5 boroughs, and treat them with respect, they are much more likely to come to school. So, and then the final parts were that despite all the campaign spending on media and ads, there is just no substitute for this spend for a direct work. And we're just encouraging all of you to sign up for canvassing, to sign up for the phone banking, to talk to your neighbors, let them know that you don't have to vote for someone just because of his faith or just because he's Muslim. You see what you can, what material benefits that you bring to the community. And election is just 5 weeks away. Voting will begin less than a month. So yeah, we just appreciate a lot of appreciation and gratitude for all the support from this community in particular. Thank you. Talha. I think we should be for now, sister. अच्छा, थैंक यू वेरी मच हसन भाई। हमारे साथ हमारे कुछ कम्युनिटी लीडर्स भी मौजूद हैं और ज़ाहिर बात है वो भी हमारे साथ बात करेंगे, क्योंकि बातें बहुत ज़रूरी है। बट जैसे कि हसन भाई ने वोटर रजिस्ट्रेशन की बात की, कैंवसिंग की बात की, फ़ोन बैंकिंग की बात की, तो अभी हम कुछ प्लान करना चाह रहे हैं। फ़ोन बैंकिंग हम प्लान करना चाह रहे हैं, कैंवसिंग हम प्लान करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हम वोटर रजिस्ट्रेशन हम प्लान कर रहे हैं। हसन भाई आपको बताएंगे कि कैंपेन जो है वो 10 अक्टूबर को 200 मस्जिद कवर करने का प्लान कर रहे हैं, 200 मस्जिद। तो अभी हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में जितनी भी मस्जिदें हैं 10 अक्टूबर को हम सारी की सारी मस्जिदों को कवर करें। तलहा हो गया, इश्तियाक भाई हो गए, फौजिया हो गई, मौला हो गई, अच्छा। तो ये लोग हमारे साथ हर जुमे को होते हैं, ये हमारे साथ रहीला बाजी होती हैं। तो अभी हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए ताकि हम इस जुमे को ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों को कवर कर सकें। तो ये जो है ये सिर्फ तलहा या सिर्फ इश्तियाक भाई नहीं कर सकते, हम सबको मिलकर ये करना होगा। नंबर 1। नंबर 2, हमें फोन बैंकिंग लॉन्च करनी है और वो हम सबसे मिलकर करनी है। और तीसरी जो चीज़ है, हमें कैनवसिंग लॉन्च करनी है। Talha have already planned a date for canvas launch for Pakistanis. Talha, date कौन सी है? Yes, I think I can do like this. Okay, canvas का next week में हम करेंगे। वो दिन हम इस तरह डिसाइड करेंगे जिस दिन आप सबको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अगर आपको वीकेंड पे ज़्यादा कन्वीनियंट है तो हम वीकेंड पे सोच रहे हैं कि हम कर लें सैटरडे मॉर्निंग को। जो मसाजिद के सामने हमने जाना है वो 10 तारीख को, जिस तरह शबीर भाई ने बताया, 200 मस्जिद में जाके हमने आउटरीच करनी है ज़ोरान मंदानी की। हम कोशिश करेंगे कि अपने नेबरहुड के तमाम मसाजिद को कवर कर सके, जिस तरह मक्की मस्जिद हो गई, कुबा मस्जिद, मस्जिद बिलाल, आसपास जितनी भी हमारे पास आती है। उसके लिए जितने लोग हमारे साथ वॉलंटियर करना चाह सकते हैं अपना नाम लिखवा लें यहाँ पर।
कैनवस लॉन्च के हवाले से उसकी तारीख हमने फाइनल नहीं की अभी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम सैटरडे का सोच रहे हैं। फिर आप सबकी अवेलेबिलिटी भी हम उसमें रखेंगे। जो वॉलंटियर करना चाहे अपना नाम हमारे साथ लिख दें, हम फॉलो अप सबके साथ कर लेंगे। जिस दिन आना फॉर्म आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया। तो कैन वी गेट अ कमिटमेंट, कौन कौन अवेलेबल है हमारे लिए? फौजिया अवेलेबल है, फौजिया अवेलेबल हमारे साथ चूंकि और और भी ऑर्गेनाइजेशन आई हुई हैं, सबको वेलकम करते हैं कि वो हमेशा से इसी में बेचता अच्छा काम कर रहे हैं। बीबी जान चूंकि बिजी थी तो एफर्ट को उन्होंने भेजा, राहिला हमारे सब लोग हम लोग सब जो है करने के लिए Exactly. हमारी ग्रुप है। रहीला बाजी को हमने से नहीं छोड़ेंगे, उसे हम अच्छी अच्छी बातें भी सुनेंगे। मगर पहले हमें कुछ लिस्ट तैयार करनी है कुछ लोगों की। तो फौजिया का नाम हमने लिख लिया, और किस किस का नाम हमने लिख लिया? मेरा ख्याल में इस तरह पास कर लेते हैं ना, आप अपना नाम और नंबर से जो करना चाहता है वो लिख ले, जो नहीं करना वो पास कर दे। हमने एक सॉन्ग बनाया सलमान से शुरू करो, भाई रब से शुरू करो। In the meanwhile, Hassan, हसन are you available? पापा दो पट Let them ask questions. वो था Anyone have any questions for Hazrat Bhai? वो भाई Hazrat Bhai मौजूद हैं। माइक पास करना मुंह के पास। बात करें तो मैं भी आपको हम ये बताते चलेंगे, मेरे पास 3 ऑफिसेज हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन न्यू लाइफ। और हसान को पता है कि हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमने कबाली की जो 1% पे थी ज़ोरान की, उस वक्त से हम उसके साथ हैं। और नॉट फॉर कि हमें कोई उसके साथ कोई ग्रीड है, कोई लालच है कि ही विल बी द विलन हो, हम उसके साथ इसलिए हैं कि ही इज़ मुस्लिम, ही इज़ जस्ट दैट आवर सन। और हमारी जितनी भी बहनें इस वक्त सब डे एंड नाइट हम लोग काम कर रहे हैं। आपको पता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इस वक्त 1000 पे पहुंच रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैशिंग में भी, एस्टोरिया में, फ्लैशिंग में, मतलब जहाँ जहाँ ख़वातीन हैं हमने वहाँ उनको एक्टिवेट किया हुआ है हर एरिया में। हम स्टेटन आइलैंड में भी कन्विंस करने जा रहे हैं इस संडे को, क्योंकि ज़ोरान का जो हमने रेट देखा है वोटिंग रेट, वो स्टेटन आइलैंड में थोड़ा कम है। तो हमने स्टेटन आइलैंड में जो 500 फैमिलीज़ को टारगेट किया और हम उन तक जा रहे हैं। हमारे जो 1000 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको पता है फारहान और आप सब भी हैं, आप भी हैं मंजूर भाई, उसका ये काम है कि हम लोगों ने एक काम अपने ज़िम्मे लिया हुआ है कि डेली आपने अपने सब लोगों ने क्या आपने अपने 4 लोगों को डेली कॉल करनी है, नए लोगों, और उनसे बात करनी है और उन्हें बताना है कि वोट करना है। अगर वोट रजिस्टर नहीं है, हमने अपने 3 ऑफिसेज, एक हमारा कोनी आइलैंड पे 1115 कोनी आइलैंड एवेन्यू पे हमने कैंपेन ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ पे हम वोट रजिस्टर कर रहे हैं। हमारे एस्टोरिया में एक ऑफिस है और हमारा एक जैक्सन हाइट पे ऑफिस है। अच्छा, एक और एडवांटेज ये है कि आई एम वर्किंग विद द होम केयर, और मेरे पास मेरे जो 800 के करीब जो है मेरे क्लाइंट हैं, और 800 के क्लाइंट के लिए 800 लोग काम भी करते हैं, यानी 1600 लोग हो गए। तो हमने उनको भी एक ग्रुप बना के मैसेज किया हुआ है कि आपने अपने घर के मतलब 3 दरवाजे इधर राइट हैंड पे और 3 दरवाजे लेफ्ट हैंड पे जाना है, और ये कन्विंस करना है कि अपना स्टेप आउट करें, आएँ बाहर आएँ, अपना वोट रजिस्टर करें। 4 नवंबर को सबने घर से बाहर निकलना है, वोट करना है। अर्ली वोटिंग भी हो रही है आपको पता है, लेकिन 25 नवंबर जो है वो डेट है, लास्ट डेट है। हमारे ऑफिस में वोट रजिस्ट्रेशन हो रही है और हमारे पास उसका डेटा भी अगर आप कहेंगे तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। हम ग्रुप में वैसे शेयर करते रहते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस वक्त बहुत आपको पता है फंक्शनल है। आप लोग चाहें अगर कोई भी तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगी। उसमें जो भी ज़ोरान की एक्टिविटीज़ हैं इंस्टा पे या पब्लिकली, स्पेशली इस दफ़ा ज़ोरान जो है इस लास्ट फ्राइडे को उन्होंने फ्लैशिंग में 2 मॉस्क में, एक जो है अल तकवा और दूसरा जो मॉस्क थी वो थी मस्जिद अबू बकर, और वहाँ गए थे। और हमारी आपदा बाजी और हमारा फ्लैशिंग का ग्रुप है न्यू लाइफ का, उन्होंने वाइटल रोल प्ले किया वहाँ पे। और इस दफ़ा भी क्वींस में जो है इस्लामिक सेंटर में, जमैका इस्लामिक सेंटर में जा रहे हैं और वहाँ हमारी टीम जा रही है। और मैं एक और चीज़ भी बताती चलूँ, और तो ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी नहीं है। और हमने एक सॉन्ग बनाया, मैंने लिखा, आइडिया राहिला ने दिया, और साइमा जहान हमारी
जानी पहचानी लोग आ रहा है, उन्होंने गाया, तो मैं चाहूँगी वो हमें 2 मिनट दें वो गाना आप सुन लें, और आप लोग वो की ना जो कहते हैं ना फितरत की बस में ही नहीं फितरत का बदलना, सूरज को भरने से तुम ना रोक सकोगे, और हम एक नए अज़्म से बुनियादें सहत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम राहीला है और मैं पहले दिन से ही ज़ुरान को सपोर्ट कर रही हूँ, और मैंने ज़ुरान पहले दिन जब मिली थी तो मैंने कहा हम बहुत छोटे से हैं, हम दुआ कर सकते हैं, दुआएं जो है ना तकदीर भी चेंज कर देती है, जब दिल से दुआ निकलती है एक मुसलमान की अल्लाह मियाँ तकदीर भी चेंज कर दिया। इंशाल्लाह देखें ज़ुरान के अल्लाह ने तकदीर चेंज की है, वो एक दफ़ा विन हुआ है और इंशाल्लाह अब दोबारा विन होगा। और जैसे कि डॉक्टर सलमान ने आपको बताया हमने ज़ुरान के लिए एक सॉन्ग बनाया है, और मेरा आज जैसे कि मेरा एक सैलून है ऑलमोस्ट 40 साल से, मेरे पास जो भी मेरा कस्टमर है दिन में 20-30 कस्टमर आते हैं, मैं हर कस्टमर को उसका बैनर देकर कि आपने ज़ुरान को वोट देना है, वो इतनी खुशी से कहते हैं हाँ हम ज़ुरान को ही वोट दे रहे हैं, हम तो ज़ुरान के साथ हैं। और मैं हर वक्त उनकी वीडियो बनाती हूँ, दिन में 40-50 वीडियो बनाती हूँ और ये सॉन्ग लगाती हूँ, मैं हर रोज़ 2-3 घंटे बाहर रख के ये सॉन्ग लगाती हूँ, इतने लोग खुश होते हैं, जो भी गुजरते हैं वो मुझे सब कहते हैं हम ज़ुरान के साथ हैं, हम अब मैं वो सॉन्ग और करने के लिए सुने आप इंजॉय करेंगे। इसमें सब में जज्बा होना चाहिए क्योंकि ये सॉन्ग मैंने लिखा है और आप सबने गाया है। ये मुझे the food is here. We have to go to the most important agenda, which is food for me, and I know it is for you as well. But you know, we have Professor here, and we just want him to speak for a few quick minutes. I'm so sorry I forgot your name. Huh? Remind me your name. Professor Gilbert is with us, and he will say a few words.
you. The benefit of talk. Friends with it. You have a very powerful movement. We have a very powerful movement. We'll wait so long on down. The rich people are fighting us like crazy. They are backing Cuomo, or to some extent the Republican is running Sliwa. Zoran has a lead, but every effort to get everybody to know I spend a lot of time in the store. I don't drive anymore, I take so I have lots of conversations, including and there are plenty of these Hi, Jordan. Thank you very much, Professor Gilbert. We have another guest here, Brother Hatim Al-Ghazi. He's running for the City Council District 45. Brother Hatim, come. We want to hear from you today. Thank you so much. It's good to be here. Assalamu alaikum, everyone. 5 weeks from now, inshallah, I'm looking forward to celebrate with you the election of our mayor, our future mayor, Zoran Mamdani. As our Professor Gordon said, we are fighting against the money. We are fighting against corporations that want to control every aspect of our city. We love this city. We are part of this city. And as you see now, they're trying to unite, and more money is pouring in just to take Zoran out. Why? Because the corporations, the greed, the corruption need to continue. But we will continue the fight, and inshallah we will win this. There is one point I just want to highlight, and I'm sure Professor Gilbert will agree with me. They are using scare tactics. They keep throwing names out there such as communism, socialism, and actually if you ask many people around you, do you know what the socialism is? Or what is the difference between socialism and communism? Not many people are aware of the difference. But scare tactic, they're trying to scare the people. This campaign is not about ideology. It's about equality. It's about fairness. It's about affordability. It's about a city accessible for all of us. It's about fairness for all of us. Not just a city for the rich and well connected. When Zoran, for example, said we need to have a food chain owned by the city, a lot of people got mad and said, oh my God, communism, and this is not fair for the supermarket, yada yada. But when you ask the people a simple question like, who do you think own and run the MTA, for example? Who do you think own and run the public schools, for example? So the government owns and run the MTA, the government owns and run public schools. So it is not about ideology, it's about affordable options. We have public schools, we have private schools, and the decision is yours. We have the subway and buses for $2.90. You can have your own private car, you can take Uber and Lyft. So it's about providing affordable options and make this city affordable for all of us. Let's all get together, unite and fight for a just and affordable city for all of us. Thank you. Thank you very much. Before we finish up, if you are from Kensington, make sure you have Sarah number. Sarah is in Kensington, and please keep up with her. The food is almost ready. We are wrapping up. Anyone have any questions? Anyone want to say anything? We welcome you all.
So, again, on behalf of Drum Beats, on behalf of Muslim Vote Project, thank you very much everyone for coming. Just to remind you, as Hassan reminded us, that voter registration is very, very important. We don't have, we shouldn't make it easy. Make sure we go out, we register, make sure every Friday we are going out in front of the malls, registering people. Make sure on 10th October, you are helping us, you are helping the campaign, reach 200 masjids. We have to call the community, we have to do food banking, we have to take that Muslim. There is no one else then we will wind this up. Hey, bhai, Raza! ओके, ये मीटिंग में जब तक फौजी बात नहीं करेगी, मेरी खत्म नहीं हो सकती।